Let's start now. So last time when we were doing contiguous and dynamic partitioning of the memory, we came across two kind of problems: internal fragmentation and what? And keep responding also, all of you. External fragmentation, yes or no? So we discussed about these two problems. We also discussed that compaction can be a way of resolving that problem, but that is like practically very not efficient, right? So now we came up with the concept paging. I'll be also seeing who is interacting, so please do interact as well, right? So now coming to paging, so what we are trying to do is, let me first of all make you explain that thing. So if I talk about your memory, let's say this is your memory, right? This is your memory. So in this memory, if I say operating system has taken some part and then 1 MB is occupied, then this 1 MB is free, then 1 MB, this 1 MB is, this is, we have 1 MB space here, and then this is, these are holes basically. The shaded region is holes. Okay, holes means you know that well. What is hole? Vacant memory. Free space. Yes, Free space. holes are basically your free space. And let's say these processes are occupied by some other process. Fine. Now these holes were creating the issue of external fragmentation. Yes or no? Agreed or not? Yes, ma'am. Now if I want to, when we will say that external fragment is there, we will say that अभी नहीं बोलेंगे, अभी तो सिर्फ holes create हुए. External fragmentation, let's say there is a process P and this process requires 2 MB, and we know that 1 MB is here and 1 MB is here free. Total we have how many memory? Total free memory with us is how much? Yes, tell me. 2. Free memory is 2 na? 2, but they are not contiguously available. This is the problem that we had come across in the previous section. Right or not? तो कुछ ऐसा Yes, क्यों ma'am. ना करें कि हम अपने प्रोसेस को ही डिवाइड कर दें. इससे क्या होगा? वो भी डिवाइड होके चला जाएगा. Yes or no? Tell me. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. अगर हम अपनी पहली वाले सोल्यूशन के हिसाब से अगर चलेंगे, and if I want to allocate it, can it be allocated? Can we allocate it? Can P occupy this memory? Yes or no? No, ma'am. no, ma'am. So here we cannot allocate this. Can't be allocated, and the reason is, what is the reason? Reason is this memory is not continuous. This is not continuous. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So this is the problem. What is the problem? This is what I have discussed just now. This is your problem, and how paging will resolve this problem. Let's understand this, and from now your lecture starts, right? This is what we have discussed earlier. Now let's come to the main context. Now if I talk about the solution, what I can do is, this is your main memory, the same diagram that I have drawn here also. So here 1 MB is occupied and this is free memory, both of 1 MB, right? What if I can divide this process? What if I can divide this process? Boli, if this process can be divided into 1 MB and 1 MB, yes or no? Yes, Total it ma'am. is 2 MB, but I have divided into two parts. And now what I am doing is I am allocating this first part to this section, means here, and then I am taking this another partition here in this section. Yes or no? So Yes, is this ma'am. process now allocated or not? Why, how and all these things will be answered, because पेजिंग में अभी हमें 2-3 लेक्चर्स लगेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ आया कि अगर मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. बोलिए. Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस, Yes, ma'am. है ना?
सो ये बात आपको समझ आ गई, हाँ हम ऐसा तो कुछ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत बड़ा बैग है और वो बैग आपका ना, लेट्स से यू आर गोइंग समवेयर, let's say through train you are going and you want to fit it under the seat, बट वो नहीं आ रहा। बट अगर उसी बैग का जो पूरा सामान है अगर आप 2 स्मॉल बैग्स में डिवाइड कर दें तो क्या चला जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि स्पेस तो Yes, फिक्स ma'am. थी ना, वो स्पेस जो फिक्स थी उसमें वो पूरा बड़ा बैग आपका नहीं आ पा रहा था, तो आपने बाद में क्या किया, बैग को, एक बड़े बैग को ही 2 स्मॉल बैग्स में डिवाइड कर दिया कि नहीं, बोलिए yes or no? So Yes, we ma'am. have also done this thing in our real life, हमने रियल लाइफ में भी ऐसा किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रही हूँ, रियल लाइफ में भी व्हाट वी डू, हम वी डिवाइड द प्रोसेस इनटू 2 पार्ट्स। समझ गए ना आप लोग? हमने वहाँ बैग को भी डिवाइड किया है क्योंकि उस स्पेस में वो नहीं आ रहा था, so we divided it. I hope you got an idea. Yes, ma'am. But now the problem is, please understand my dear students, ये तो एक simple problem, but इसमें challenges क्या है? What are the, so what I thought was, I thought that ये solution हो सकता है, but challenges क्या होंगे इसकी? कुछ challenges तो होंगे अगर आप solution बताओगे तो, right? तो वो challenges क्या हो सकते हैं? अब challenges का मतलब यहाँ पे ये होगा, हो सकता है in your memory the partitions that you have ना, the holes that you are having, they are of different size, yes or no, right? And जो processes which are coming, they are also of different size, yes or no? So what is the question now? Can you tell me what is the question now? The question is how to find out that what should be the partition size both in your main memory and both in your process. Agreed or not? Tell me. What is the question? Question in front of us is processes will be of different sizes and the free space in the memory that are the holes are also of different sizes. Agreed or not? So how are we gonna fix that thing? कैसे करें, कितना करें, वो एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। Yes, so what is the challenge, all of you? Tell me what is the challenge? Challenge is dividing a process according to the whole is going to take a lot of analysis and a lot of coding implementation. Okay, understood or not? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बट पेजिंग से एक बात तो क्लियर हो गई। क्या क्लियर हुई? हम 2 चीजों को डिवाइड कर रहे हैं। कौन सी है वो 2 चीजें? फर्स्ट इज योर Process. एंड सेकेंडली वी ऑलरेडी हैड पार्टीशंस वेयर इन, Holes. मतलब लोकेशन क्या है? अरे एक तो प्रोसेस को आप डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे आपने देखा, आपने उसको डिवाइड कर दिया है। एंड वेयर इज द अदर सेक्शन इज Memory holes. exactly, yes. So it means we have to create what? Partitions, and those partitions is basically referred as paging, and those partitions are related to what? Process and memory. Agreed? Let me know if it is clear or Yes, not. देखिए ये सब लेक्चर के 2 लेक्चर पेजिंग में लगेंगे, बट अगर आपको समझ आ गया तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, दिस इज क्लियर। शैल आई मूव अहेड नाउ? प्लीज एक्नॉलेज। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Maximum participation that I need from your class is for memory management only. Okay, so now because this is one of my favorite topic also, so what we are going to do, we are going to divide the process into small parts. Agreed? Yes, ma'am. Acknowledge जल्दी जल्दी करना, ठीक है? And we are going to divide the memory also into small parts such that each part is able to hold one part of the process. Got my point? We are going to divide the process into small parts as well as we are going to divide the memory in small parts, but the division has to be in such a way that the process can be accommodated inside the memory. Agreed? Yes. So Yes. the small parts in which a process is divided, स्मॉल पार्ट्स, मैं बहुत ही क्रिस्प नोट्स आपको दूंगी, कहीं से पढ़ने की, नेट से, यूट्यूब से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। स्मॉल पार्ट्स इन विच a process is divided, उसको क्या बोलेंगे अब हम? whenever you are going to divide a process means p को अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं क्या? पेज।
Remember the terms, new terms are added here. And small parts in which memory is divided. बहुत ही crisp points हैं. Small parts in which memory is divided. अब हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? मेमोरी को. Yes, and this is called as, what we call it? Frames. Frames. इसमें किसी को कोई डाउट है? अभी तो कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं, अभी तो मैंने टर्म्स बताए हैं आपको. नो मैम. सो प्रोसेस होगा, इस तरह से कोई प्रोसेस होगा हमारे पास, उसको भी हम डिवाइड करेंगे. और हमारे पास क्या होंगे? फ्रेम्स होंगे. मेमोरी को भी हम इस तरह से डिवाइड करेंगे. सो दीज पार्टीशंस, सो ये क्या बोले जाएंगे? व्हाट दे विल बी कॉल्ड? Page frames. These are called as pages, and these are called as Frames. frames. And notation also, just remember the small one also. Page for P and frame for F. This much is clear? Let me know. Yes, ma'am. Next important point. और ये क्वेश्चन में आपका असेसमेंट 5 नंबर के क्विज में भी आएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अब दिस इज योर मेमोरी, राइट? दिस इज योर मेमोरी एंड दिस इज योर पेज प्रोसेस. अब उन्हीं चीज को फिर से रिवाइज करते हैं. क्या कहा था मैंने? प्रोसेस को किस में ब्रेक, मेमोरी को किस में ब्रेक करेंगे आप? जो पार्टीशन है उसको आप क्या बोलेंगे? Frames. Yes, they are frames. And here Pages. pages. Right. Now let's understand the principle. What we are going to do is, please understand the point. We are going to allocate one page from here. Let's say this one. We are going to take one page from here. अभी इसको पेज बोलेंगे, ठीक है? 1 पेज, 2 पेज, पेज 3, पेज 4. दिस इज फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4. इज इट क्लियर? तो मैं इसका नोटेशन भी आपको क्लियर कर देती हूँ. दिस इज व्हाट? फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3. क्लियर और नॉट? दिस इज पेज 1, पेज 2, मतलब 0 से करते हैं स्टार्ट इसको. पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3. एग्रीड? अब नंबरिंग भी करेंगे भाई. अगर एक से ज्यादा पार्टीशन होंगे, अगर क्लास में एक ही स्टूडेंट है तो कोई इशू ही नहीं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, भी असाइन व्हाट रोल नंबर्स टू देम, यस और नो? 1 2 3 4. शिवोहम, आयुष, निखिल. ओके ओके देन. So now what I do, I have to allocate one page from the process to where? Any of the frames in the given memory, whichever is free. Agreed? अभी ये मत सोचना कि यहीं भेजना है, कहीं भी जा सकता है ये. आपने मेमोरी को डिवाइड तो कर दिया है, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल ऑफ देम आर फ्री. लेट्स से दिस इज फ्री, सो व्हाट वी विल डू? We will allocate, what we will do? We will allocate this page of a process to the frame of a memory. बोलिए. तो की पॉइंट क्या निकला यहाँ से? The page of a process. किसका? Page of process is allocated to frame of memory. Agreed this much? Yes. सबको इतना तो क्लियर हो गया? Yes. मैं इतना एम्फेसिस दे दे कि क्यों पढ़ा रही हूँ, मैं आपके माइंड में ना इसलिए बार बार चीज़ें बोलती हूँ या डायग्रामेटिकली आपको छोटी छोटी चीज़ों से समझाती हूँ, ताकि आपको जब नेक्स्ट पॉइंट है उससे पहले वो सेट हो जाए दिमाग में. समझ रहे हो ना? माई वे ऑफ टीचिंग इज नॉट लाइक कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा. अगर एक बार ध्यान से सुन लोगे, मैक्सिमम एक रिविजन में वो आपके माइंड में रहेगा हमेशा, अगर आप अच्छे से सुनोगे तो.
ठीक है, तो अब क्या हुआ, आइदर यू कैन से दिस, और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके मैं लिखना चाहूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं, अ फ्रेम इज गोइंग टू व्हाट, होल्ड अ पेज। बोलिए, फ्रेम पेज को होल्ड कर रहा है या पेज जाके एलोकेट हो रहा है फ्रेम में, बात तो एक ही है ना। जैसे इफ यू रिमेंबर रिसोर्स ग्राफ इन डेडलॉक, a process is allocated to a resource or a resource is assigned to a process, बात सेम है या नहीं, घुमा के बोला है ना। Yes, ma'am. और तो जैसे तो हम मान लो मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम मेरे स्टूडेंट हो, बट रिलेशन तो सेम ही है ना। अगर तुम्हारे साइड से तुम बोल रहे हो कि दीप्ति मैम हमारी टीचर है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मेरे साइड से तुम मेरे स्टूडेंट हो। अगर मैं कहती हूँ यू आर माई स्टूडेंट, ऑटोमेटिकली आई एम योर टीचर। सिंपल है, घुमा के बोला है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट करने में तो ऐसे करते हो जैसे 90s Yes, का जो ma'am. इंटरनेट था ना, बिल्कुल स्लो मोशन में आता था वैसे। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है भाई, हमने ये भी कर दिया। अब ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो ये है, पेज साइज is always equal to frame size, yes or no? Yes, ये ma'am. एक टेक्निक है, अगर इससे हम फॉलो करते हैं तो हमारा पूरा ना एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन रिमूव हो जाएगा। पेज साइज इज ऑलवेज इक्वल टू Frame size. Frame size. अगर ये एक MB का है ना, तो ये भी क्या होगा, 1 MB का। 1 MB का. बोलो, इतना क्लियर हो गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, अब हम Yes. बहुत हद तक आपको कॉन्सेप्ट बन चुका है, अब हम इसे थोड़ा और एनहांस करते हैं कॉन्सेप्ट को। जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है, क्या कोई स्टूडेंट उसे 1 मिनट में समराइज कर सकता है कॉन्फिडेंटली? तब तक मैं एक डायग्राम बनाना है, आप लोग में से कोई भी मुझे बता सकता है, आई विल बी वेरी ग्लैड। Ma'am, shall I? हाँ हाँ, यस, Ma'am, बोलो। paging is related to the process, related to the partition of process and memory, in which it is used to remove the fragmentation. And the first idea that we made out from this is we have to divide the process as well as the memory. So the challenges that we will face is how we will decide the size of the process as well as the memory. So the small parts in which a process is divided is called the page, and the small parts in which a memory is divided is called a frame. And the key points that we discuss here is that the page of a process is allocated to the frame of a memory, and a frame will hold a page, and page size should be equal to the frame size to remove the external fragmentation completely. वेरी गुड अमृता, आई एम वेरी हैप्पी। सी, अगर आपको कोई चीज़ क्लियर होगी ना, तो वो क्लियर का मतलब ये है कि आप किसी और को भी वैसे ही समझा पाओ, ठीक है, एंड यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग, सो इट वाज वेरी टू द पॉइंट एंड क्लियर, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, नाउ सी, आप लोगों को जो मैंने असाइनमेंट दिया है ना, आपको अपने टॉपिक को इसी तरीके से, आई विल जस्ट आस्क, प्रेजेंटेशन का मतलब नहीं है आधे घंटे तक बोल रहे हो, सिर्फ 2 to 3 minutes या 4-5 minutes में, हर एवरी स्टूडेंट विल बी गिवन ओनली 5 minutes। विद इन दैट 5 minutes आपको अपने टॉपिक को ना इस तरह से प्रेजेंट करना है कि एवरीथिंग इज सो क्लियर। गॉट माई पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. When you will be joining the companies, listen my dear students, when you will be as a software engineer and software data scientist, कुछ भी आप ज्वाइन करते हो, वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट क्या होती है, your communication should be clear, good, your things that you are delivering should be clear, but the presentations are play a very important role nowadays. You can see in the online world now PPTs are playing a great role, right? So PPTs, मैंने ये बात ना सेकेंड सेमेस्टर में सभी बच्चों को बताई थी, whom I taught, oops, and I hope you all got in clarity कि अब आपके बोलने से के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है, राइट? तो अगर उस चीज़ का प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि एक थीसिस लिख दिया, उसके ऊपर पूरा रिसर्च कर दिया,
उसका मतलब ये प्रिसाइज टू द पॉइंट, आप अपने टॉपिक को कैसे दूसरे को समझा रहे हो कि दे फाइंड इट क्लियर, 5 मिनट में प्रेजेंटेशन क्लियर होगी, समझो। कोई बिजनेस आइडिया है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज मेक अपने कॉन्सेप्ट्स को अगले 3 साल के लिए इतने अच्छे कर लीजिए कि जब आप बोलो, आप किसी को कुछ समझाना चाहो, कि कंपनी वाला ये सोचे कि अरे इस बच्चे से मैं और भी तो कुछ पूछ लूँ, एंड यू वॉन्ट यू आई एम टेलिंग यू दैट जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं ना, मतलब जो आपका इंटरव्यूअर होता है ना, वो उससे इतना इम्प्रेस हो जाता है, वो चाहते हैं यार ऐसा क्या है जो इसे नहीं आता, चलो और पूछता हूँ और पूछता हूँ। और जैसे जैसे ऐसा होता है ना, ऐसे बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो मेरे पढ़ाने का भी एक ही लॉजिक है, पढ़ाओ ऐसे कि एक बार में समझ आए, पर उस पढ़ाने की वजह से बच्चे में जो इंटरेस्ट क्रिएट हो, तो बच्चा भी ना उस सब, चाहे वो मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे खुद से एक्सप्लोर करे। एंड प्लीज डोंट से कि टीचर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब भूल जाओ। अगर एक गरीब से गरीब बच्चा आईएएस ऑफिसर बन सकता है, एक गरीब घर से निकला हुआ बच्चा आईआईटीएन बन के स्टैनफोर्ड जा सकता है, तो आप क्यों नहीं जा सकते अगर आप एमआईटी में इतनी फीस देते हो। तो मैं ये चाहती हूँ मेरा हर स्टूडेंट अगले 3 साल बहुत मेहनत करे, और इसीलिए मैं पुश करती हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि आप लोग अच्छा करो लाइफ में, ठीक है। बीच बीच में आ जाता है थोड़ा मोटिवेशन वाला, तो बट हो नहीं पाता वो कंट्रोल, ठीक है। चलो ठीक है, अब चले वापस। Yes, ma'am. Yes, इसलिए ma'am. मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, देखो स्टूडेंट्स, कभी गिरने से मत डरना, बट मौका मिले तो उसे छोड़ना मत, चाहे इंसल्ट हो चाहे कुछ भी हो। जब मौका मिले अपने मौके को यूटिलाइज करो, यू नेवर नो दैट अपॉर्चुनिटी कैन चेंज योर लाइफ। सो हाउएवर स्मॉल, हाउएवर बिग इज द अपॉर्चुनिटी, इफ यू गेट अ चांस प्लीज पार्टिसिपेट, okay. Now I Yes, won't ma'am. distract the class, but I think it was from my heart, so I could not stop. Okay, now see, P1, P2, P3 and P4 are 4 processes, and I have already divided these processes, है ना। किसमें डिवाइड कर दिया मैंने? Page. Pages. वेरी गुड, ये पेजेस में डिवाइड Pages. हो गए हैं। और ये हमारी क्या है? मेमोरी। अब मेमोरी को किसमें डिवाइड कर चुके हैं हम? Frames. Frame. फ्रेम्स। ये भी सबको क्लियर है। Frame. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था लास्ट, वो क्या था? पेजेस एंड फ्रेम्स के बीच में क्या रिलेशन है? Page Size. size equal They frame should be size. equal. ठीक Yes, है, ma'am. अब इसको कितने फ्रेम्स लगे? पेजेस लगे 4, इसके भी 4 पेजेस हैं, इसके भी 4 पेजेस हैं, इसके भी 4 पेजेस हैं, और ये टोटल जो हमारी मेमोरी है, फॉर द एग्जाम्पल अभी हमने इसको कितना लिया है, इसमें भी 16 फ्रेम्स हैं, तो यानी कि जितने भी हैं एज इट इज पूरे इसमें आ जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या है, हो सकता है मेमोरी बिल्कुल खाली हो, तो कॉन्टिजियसली आप सारे आइटम्स को प्लेस कर रहे हो, तो ये सारे के सारे फ्रेम एक साथ कहाँ जाएंगे? पेजेस यहाँ जाएंगे कि नहीं? बोलिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंटिन्यूसली आ रहा है, बिकॉज हो सकता है ना मेमोरी एम्प्टी हो, हम सारे केसेस को लेके चल रहे हैं। तो इस पूरे चारों के चारों फ्रेम्स में कौन है? P1, P1, P1 and P1. I told you one more point. Page is allocated to frame or frame is allocated to page? Pages Is Page allocated. Page is is Exactly. allocated to So frame. always the direction will be from Page is pages to allocated. frames. Clear है कि नहीं सबको? शाबाश। Yes, ma'am. Clear? So this is the case when the memory is completely empty. ठीक है। अभी दूसरे केस में क्या है, मान लीजिए आपने ये वाला जो प्रोसेस है ना P2, इसके चारों के चारों फ्रेम्स कहाँ आ रहे हैं हमारे? कॉन्टिजियसली into the next 4 frames. All the 4 pages are contiguously allocated to the, बोलिए, yes or no? Yes, ma'am. Then again the 4 pages of process P3 are allocated to whom? The next 4 frames. Yes. And then finally P4, all the 4 pages are allocated to next 4 frames. Any doubts in this, any one of you? No, ma'am. This is the case when your memory is free. Okay. Up. Now important point. How many processes are there? 4. 4. 4. And each process is of how much? Let's say if I say one page is of 1 MB. Tell me the size of every process here in this example. 4 MB. Obviously. 4 MB. Very good. Okay. Very good. So it means ये क्या है हमारा? 4 MB. मैं वाइट से लिख रही हूँ, ये भी 4 MB है, ये भी 4 MB है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। इसका मतलब ये फ्रेम साइज कितना होगा? एक फ्रेम कितना होगा?
One frame will be 1 MB. 1 MB. very good. Why? Because if one page is of 1 MB, then obviously pages and frames are equal in size. So this will be also in 1 MB or not? Yes, ma'am. But how did we came to know this? So total of number of frames हमेशा कैसे निकलेंगे? अब एक फॉर्मूला देख लो. Total number of frames. कहाँ पे होंगे ये frames? मेमोरी में ना? मेमोरी में या नहीं? Yes, ma'am. Yes, This is ma'am. in कैसे पता चलेगा? It will be total memory size. टोटल अभी फॉर्मूला यूज होगा आपका. ये तो मैं अभी ऐसे एग्जांपल से समझा रही हूँ. टोटल मेमोरी साइज, जितना भी मेमोरी का साइज है उसको किससे डिवाइड कर दोगे? फ्रेम साइज से, राइट? अगर मैं कहती ये पूरी जो मेमोरी है ये 16 MB की है. मेमोरी कितने की है? 16 MB. तो 16 MB अपॉन फ्रेम साइज कितना है? 1 MB. One. तो हर फ्रेम कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने होंगे? 16. 16. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अभी मैं ऐसा एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें. बोलिए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो इनिशियली ये कौन सा एग्जांपल है? फ्रेम्स आर फ्री. Yes, ma'am. इनिशियली क्या है? ये फ्रेम्स फ्री है. ये कौन सा केस करा रही हूँ मैं? जब फ्रेम्स क्या है? फ्री When है. frames are free. Initially, when all the frames are free, you need not go for non-contiguous memory allocation. Tell me what kind of memory allocation is this? Continuous. Contiguous or continuous, but contiguous memory allocation. Why it is contiguous memory allocation? Because all the processes have been allocated into the memory into a given sequence. Clear? So this concept that I have taught you is where I have divided the frames into, where I have divided the memory into frames, processes into pages, page size and frame size are equal, okay, and all the processes that are coming are allocated in a contiguous manner in the memory, and this theme is called as contiguous memory allocation, but with what? Paging. Any doubt in this? No, ma'am. No, ma'am. यहाँ पे अभी वैसे एक बात बताऊँ, यहाँ पे ना अगर अभी हम पेजिंग नहीं करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती. आई होप यू अंडरस्टूड. नहीं आती. ठीक है. Yes, ma'am. तो मैं कोई ऐसा सिस्टम डिजाइन करूँ जिससे डेडलॉक ना आए या कोई प्रॉब्लम ना आए, वो एक अलग बात है. ठीक है. लेकिन अगर हम डिजाइन ही नहीं करेंगे तो चांसेस है ना. यस और नो? अगर हम सोल्यूशन Yes, डिजाइन नहीं ma'am. करेंगे तब तो फ्रीक्वेंटली चांसेस आते रहेंगे, प्रॉब्लम आएगी. बट अगर मैंने सोल्यूशन बना दिया तो अब प्रॉब्लम आए चाहे ना आए, बट आपका काम हो जाएगा. यस और नो? तो इस केस में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी तो क्या हो गया? काम हो गया हमारा. बट अभी दूसरे केस में प्रॉब्लम वाला लूंगी, वहां पे आपको समझ आ जाएगी ये बात. इतना क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. So whenever you have a chance to load the processes at once, load it at contiguous basis to avoid fragmentation. तो ये कह रहा है, इस प्रिंसिपल से ये समझा रहा है कि अगर आपको चांस मिलता है कि आप प्रोसेसेस को क्या है कॉन्टिजियसली रख पाओ, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि अगर कॉन्टिजियसली रखोगे तो क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी? फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी. यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर? अभी इसी एग्जाम्पल में मैं चेंजेस कर रही हूँ और आपको एक बात बता रही हूँ. अब ध्यान से नेक्स्ट 2 मिनट सुनिए. क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रही हूँ. प्रोसेस P1 हैज ऑक्यूपाइड ऑल द 4 फ्रेम्स ऑफ द मेमोरी. यस और नो? एक्नॉलेज थोड़ा जल्दी कीजिए. Yes, Yes, ma'am. Yes, Again ma'am. process 2 has been allocated next 4 frames of memory. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Similarly, Yes, ma'am. P3 and P4 have also loaded. Yes or no? Yes, ma'am. अब हम क्या एज्यूम करते हैं? अब नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा? हमने एज्यूम किया P2 and P4 wants to perform some input output operation, so they have to just go from here. क्योंकि मैंने आपको प्रोसेस मैनेजमेंट जब पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था प्रोसेस को अगर रन करना है तो वो सीपीयू में आ जाएगा, बट जब उसे इनपुट आउटपुट करना है तो वो सीपीयू को छोड़ के कहाँ चला जाएगा? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए सेकेंडरी मेमोरी में. यस और नो? तो अगर if they have to do some input output operation, what P2 and P4 will do? If I have to do
input output, P2 and P4 have to do input output operation. Will they be taken out from the memory or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So it ma'am. means कहाँ जगह खाली होगी मुझे बता दीजिए, वो कहाँ से स्पेस छोड़कर चले जाएंगे? P2 वाली और P4 वाली frames. एग्जैक्टली ये वाला जो जगह दिख रहा है आप लोगों को, ये प्लेस क्या हो जाएगा? Free. Empty. Free. फ्री होगा. क्यों? बिकॉज Free, नाउ free. दे आर गोइंग फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. यस और नो? Yes, They are ma'am. going for input output operation. ठीक है. The reason is once the process which are waiting for input output are taken out, we can place some other process which are waiting to run. क्यों निकालना है इनको यहाँ से? क्योंकि जब ये input output के जाएंगे और यहाँ पे जो space create होगा, we can allocate some other process into this space. Yes or no? yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. So assume that P2 and P4 are pulled either. P2 and P4 are completed. ठीक है. अब क्या होगा? So take P2 and P2 out of the main memory and put them in secondary memory. ठीक है ना? क्योंकि अभी इनपुट आउटपुट के लिए जा रहे हैं, इनको यहाँ से हटा दो ताकि कोई और प्रोसेस आ सके. और ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि सिस्टम का परफॉर्मेंस तभी अच्छा होगा जब हम नए प्रोसेसेस को स्पेस दे सके मेमोरी में. एग्रीड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So this is the concept of paging. Understood? अब क्या होगा अभी मैं आपको बताती हूँ. इतना क्लियर हो तो बोलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अगर यही चीज है, अगर देखो ये इनपुट आउटपुट के लिए जो जगह बनी है ना, यही स्पेस अगर हमारा कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन होता तो इनको हम क्या बोल देते हैं? ये जो फ्री स्पेस क्रिएट हो गए हैं, Whole. बोलते हैं या नहीं बोलते? होल्स बोलते हैं, है ना? Yes, ma'am. अब कह रहा है these holes might not be useful if later a process wants to use it completely. यही फ्रेम्स जो जितना भी फ्री जगह, अगर उतने ही साइज का प्रोसेस आ जाएगा तो क्या फ्रैगमेंटेशन रहेगी? Tell me. No, ma'am. If a process of exactly the same size of the hole enters into the system, तो कोई fragmentation नहीं होगा. यानी कि let's say if a P5 process comes, and that is also 4 MB, don't you think it will be completely allocated to this hole? So Yes, will there be yes, chances ma'am. of fragmentation? No Will there be fragmentation. chances of fragmentation? No, ma'am. No, ma'am. But what if this P5 is of 8 MB? Question is, what if this is of 8 MB? Because these are holes. These are holes, na? So earlier if P5 is of 4 MB, no issue. But if P5 is of 8 MB, and now we will understand how important is paging for us. If this is clear, please acknowledge. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Or I would highly suggest you to download this recording. It will be highly beneficial for you even in your placements also. To be very honest, this is going to help you a lot. Okay, for your final exams also. Now let's come back. अब मैंने क्या बोला था आपको? देखिए मैं अपना थोड़ा रफ डायग्राम बना रही हूँ, ज़्यादा सुंदर नहीं बनाऊंगी, थोड़ा हमें काम जल्दी करना है. तो मैंने इसके 4 पार्टीशंस किए थे ना? यस और नो? Yes, ma'am. कौन ma'am. चला गया Yes, था ma'am. इनपुट आउटपुट के लिए? कौन चला गया बताइए? P2, P4. P2, P2 and P4. P4. Yes, right. So अब P2 is not there, P4 is also not there, P1 यहाँ पे है और P2 भी यहाँ पे है. यानी कि ये स्पेस अब हमारा क्या हो गया है? फ्री हो गया है, राइट? एंड इसको हमने क्या बोल दिया था? होल्स. यस और नो? I gave you one Yes, more ma'am. condition. What was that condition? That if P5 wants to enter the system and it is of 8 MB, can it be allocated here? If it is contiguous, is allocation possible? No, ma'am. If contiguous memory allocation, अगर contiguous memory allocation होगा तो क्या हम allocation कर सकते हैं? प्लीज ऑनेस्टली आंसर करिए. दो हमारे पास यहाँ पे भी 4 MB फ्री है और यहाँ पे भी 4 MB फ्री है. क्या हम allocate कर सकते हैं? Yes, ma'am. किसने कहा yes? Who said yes? We are able to divide the process. नहीं, without paging you say. मतलब जो हम पहले पढ़ रहे No, थे, ma'am.
No. Okay. Without paging, is it possible? I redefine my question. Without paging, is it possible? No, ma'am. Ma'am, can No, we do ma'am. compaction here if we don't want to do paging? What? Is compaction possible here? नहीं नहीं, कॉम्पैक्शन तो हमने छोड़ दिया है, मैंने आपको बताया ना, कॉम्पैक्शन बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, Okay. वो नहीं करना, ठीक है. I find it right, good Kunal, that you thought about it, but no compaction, nothing. But simply contiguous memory allocation कर सकते हैं हम, हमारे पास होल्स है. इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, ये जो होल्स क्रिएट हो गए हैं? Fragmentation. Yes, exactly. Fragmentation. ये तो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन. एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन क्या था? When the process that you want to acquire into the system It is not having able to this, get executed. memory is there but it is not contiguous. So अगर पेजिंग ना हो तो क्या ये हो सकता है P5 execute? बोलो, allocation No, हो सकती है? ma'am. No, ma'am. Answer is a big no. No. But इसका solution क्या है? Paging. What is the solution? Very good. Paging, अब शायद पेजिंग समझ आ गया होगा सबको. पेजिंग समझ आ गया? Yes, ma'am. अब कैसे करेंगे Yes, वो ma'am. देखते हैं. अब ठीक है भाई, पेजिंग तो हो सकता है, तो अगर हो सकता है तो कैसे? देखिए, ये जो प्रोसेस है P5, अब क्या करना पड़ेगा P5? देखो, मैंने ना आपको एक और बात बताऊं, ये प्रोसेस डिवाइड कर रखा है, बट अगर मैं इसे डिवाइड नहीं भी करती तो 4 MB का था तो 4 MB डायरेक्टली चला जाएगा ना कॉन्टिजियसली. ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा. मैंने इस पिछले डायग्राम में आपको डिवाइड करके बताया था, ये डिवाइडेड दिखा रहा, बट अगर मैं ये डिविजन्स ना दिखाऊं तो भी तो चला जाएगा ना. यस और नो? Yes, ma'am. प्लीज अंडरस्टैंड Yes, माय ma'am. पॉइंट. ये मैंने वैसे ही पेजेस और फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया, बट अगर मैं ना करूंगी तो मुझे और भी कॉन्सेप्ट समझाने थे. अगर मैं ये डिवाइड ना करूं, क्या P1 P2 P3 P4 कॉन्टिजियसली आ जाएंगे कि नहीं? यस. Yes, ma'am. ये समझना माइंड में, ठीक है. अभी ये सोचो कि ये मैंने बिना पेजिंग की है, बट समझाने के लिए आई मेड दिस पॉइंट. ये सब बताना था ना मुझे, फ्रेम साइज और ये सब पेजेस और ये सब कॉन्सेप्ट बताना था. समझ गए? ये पेजेस नहीं है अभी, फ्रेम्स भी नहीं है, ठीक है. अगर ऐसे ही इमेजिन करके अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में फिर से सोचेंगे, सो अब ये मान लो ये पेजेस नहीं है, लेट्स से, ठीक है. दिस इज कंप्लीट प्रोसेस P1. तो P2 तो बेसिक, अगर आप P5 की बात करें, अभी तक पेजिंग नहीं था मेरे सिस्टम में, नो पेजिंग कॉन्सेप्ट. अभी इसका सोल्यूशन हम डिजाइन कर रहे हैं पेजिंग. तो इट मीन्स अगर मुझे इन प्रोसेस को P5 को आई हैव टू एलोकेट इनटू द मेमोरी, तो व्हाट विल बी द सोल्यूशन? Paging. और पेजिंग का मतलब क्या है, आप बताओ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेजिंग? Ma'am, we can divide it into frames and Dividing it into. It means what? What it? What is it here? Dividing the process and the memory हाँ, तो प्रोसेस और मेमोरी को किस में डिवाइड करोगे, अलग अलग बताओ. frames में, into frames and pages. and then we can fit it. ओके, तो यानी कि ये तो हमारा मेमोरी है, राइट. मेमोरी मैंने आपको बोला था 16 MB, तो हमने उसको कितने में डिवाइड कर दिया, लेट्स से इतने फ्रेम्स में बना दिया हमने, राइट. सो P1 was already there in the first 4 frames, right? आ गया. और उसके बाद नेक्स्ट 5 ये जो थे, नेक्स्ट 4 ये फ्री है. यस और नो? ये क्या है? Yes, ma'am. फ्री है. ये ऐसे मान लो, ठीक है. ये 4 है, मैंने गलती से एक एक्स्ट्रा आ गया, तो समझ जाओगे तुम लोग शायद, है ना. बोलो भाई. Yes, ma'am. अभी ये तो फ्रेम्स में Yes, डिवाइड ma'am. हो, दिस मेमोरी इज डिवाइडेड फ्रेम्स. नाउ व्हाट यू विल डू विद दिस, लेट्स से प्रोसेस, अभी मेरा नया प्रोसेस है प्रोसेस 5, यही था ना, बोलो. Yes, ma'am. दिस इज P5. इसको भी हमने किस में डिवाइड कर लिया? Pages. अब Pages. ये हो गया पेजेस, ठीक है. अब समझ गए होंगे शायद आप लोग मैं क्या कहना चाहती हूँ. इसके जो फर्स्ट, ये यहाँ पे कितने फ्रेम्स खाली है? हाउ मेनी फ्रेम्स आर एम्प्टी हियर? Ma'am, in total there are 8. नहीं, यहाँ पे कितने हैं? 4. मैम कहाँ पे? तो हाँ, यहाँ पे. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से 4 पिक करेंगे,
Yes or no? Ma'am, your cursor is not visible. Let me share it. Please share. अब Visible, ma'am. So what I'm saying is दिविज सिर्फ yes और visible इनसे ज़्यादा better ये होगा, concept भी समझना ज़रूरी है. समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? So now see here, मतलब हमने क्या किया, फ्रेम्स इसको पेजेस में डिवाइड कर लिया ना. तो these are 4 pages here and 4 pages here. Yes or no? Yes, ma'am. अब क्या करेंगे, ये क्या है, कॉन्टिजियस है या नॉन कॉन्टिजियस? होल तो अब यहाँ पे अलग बन गए हैं, देखो देखिए आप, दिस इज होल. बट क्योंकि आई हैव डिवाइडेड द मेमोरी इनटू पेजेस, फ्रेम्स, नाउ व्हाट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ पेजिंग, नाउ द सॉल्यूशन दैट आई एम सेइंग इज, नाउ आई एम फॉलोइंग पेजिंग. बोलिए अब क्या कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन बताए. मैम पेजिंग करके We can allot the first 4 page, the first 4 frames, and the next 4 pages to the next empty 4 frames. frames. Exactly. So these 4 pages will be allocated to whom? The first whole. And these 4 pages can be allocated to the P4. last 4. I hope it is clear. Yes, ma'am. But Yes, is it contagious? Is it contagious? no, ma'am. no But with the help of whom? With the help of what principle it was Paging. possible? Paging. So now I think I could make you understand the relevance of paging. Yes. ma'am. So this memory here is non-contagious. And when do we follow the principle of paging? When do we require paging? When the free locations when the in memory the memory is are not हाँ नॉट फ्रैगमेंटेड है अगर आपकी मेमोरी, या फिर आप कह सकते हो कि आपके जो मेमोरी लोकेशंस जो फ्री हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं है. And from here Yes, you ma'am. can see that we can, with the help of this, we can completely remove what? With the Fragmentation. help of paging. Very Fragmentation. good. With the help of this paging, completely क्या कर सकते हैं? Fragmentation is removed. External fragmentation. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I think अगर पहले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है वो भी क्लियर हो गया होगा, और पेजिंग भी. अब तक मेमोरी मैनेजमेंट में कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट स्टिल नाउ? मैम, इज इट पॉसिबल कि ये जो हमने 4 फ्रेगमेंट्स किए हैं इसको ऑर्डर में नहीं डालो, बट लाइक फर्स्ट 2 पहले डाल दिए एंड लास्ट के 2 हमने कंबाइन कर दिए और वो इस ब्लॉक में डाल दिए. बट यहाँ पे तो 4 फ्रेम्स है ना, एक फ्रेम एक ही फ्रेम, एक पेज एक फ्रेम में आएगा ना. तो यहाँ शुरू के 4, क्योंकि यहाँ पे 4 फ्रेम्स थे तो 4 यहाँ डाल दिए. बट अगर मान लो ये और सेग्रीगेशन होता और यहाँ पे 4 होल्स होते 2-2 फ्रेम्स के, तो हम 2-2 करके डालते अलग अलग. ओके मैम. समझ आया? हाँ. I hope it is clear. His question is, he's saying instead of 4 can be divided into 2, but understand na, actually it's not about this complete thing. It is about 4 frames. 4 frames allocated to 4 pages allocated to 4 frames. Here 4 pages allocated to the next 4 frames. अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 फ्री होता, yes, यहाँ 2 फ्री है, यहाँ 2 फ्री है, यहाँ 2 फ्री है, तो क्या करते? 2 pages would have been shifted there. I hope now this is clear. Yes, ma'am. And when do we apply paging? When do we apply paging? In a non-contiguous memory location. Very good. Very, very good. So this is what I wanted to teach you today. I think it is clear. Well clear. Yes, ma'am. Okay. In the class, I assure you that whenever you're going to solve any MCQs from anywhere, you will be able to solve it. ठीक है. चलिए अब मैं एक लास्ट कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ.
इस टॉपिक को वाइंड अप करने के लिए, बिकॉज अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, एंड न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, ओके। अब कुछ की टर्म्स हैं, these were some of the key terms. I think now everything is clear to you. External fragmentation, internal fragmentation, then contiguous memory Yes, allocation, non-contiguous memory allocation, dynamic partitioning, and then memory management. May you understand paging, frames, pages, everything. These terms are now into your head or not? Yes, Yes, ma'am. ma'am. yes, ma'am. Yes, very good. Sahil, Akhil, Animesh. Okay. Yes, ma'am. Chalo, let's move. Ab now few more important terms are there which are required for your numericals, right? So address, अगर मैं इनको फिर से ऐसे point कर रही हूँ, address generated by CPU. CPU जो आपका एड्रेस जनरेट करता है उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस. ये टर्म्स अब आपको यूज होंगे इसलिए बता रही हूँ, लॉजिकल एड्रेस, right? So this is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Yes, CPU generates an address asking for something belonging to a process. Address generated by a CPU is called logical address, right? And the next is so हमारा basically ये जो memory manager है वो क्या कर रहा है? अच्छा, एक और important term है address generated by CPU हो गया था, address generated by main memory, right? इस एड्रेस का नाम क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल एड्रेस. ये याद रखिएगा. कैसे याद रखोगे? फिजिकल एड्रेस, मेन मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिजिकल मेमोरी बोलते हैं या नहीं? और Yes, हम रैम भी बोल देते हैं. either you call it RAM, either you call it physical memory, either you call it main memory. All three terms are same. So if you can remember, physical address is generated by physical memory, that is main memory. तो जो दूसरा एड्रेस है वो कौन जनरेट कर रहा है? CPU. ओके, वेरी गुड. अगले न्यूमेरिकल के लिए एक दो पॉइंट और याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा. एंड प्लीज CRs, please track the attendance also. So I'm dividing this logic. This is what? Logical address, and this is what? Physical address. I'm dividing Physical it address. into two parts, both of them. Now I told you. So here, जो अब आपका जो फिजिकल एड्रेस है वो कौन जनरेट कर रहा है? मेन मेमोरी. तो फिजिकल एड्रेस दो कंपोनेंट से बना होता है. वन इज फ्रेम एंड अनदर इज ऑफसेट. ऑफसेट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड योर लॉजिकल एड्रेस इज पेजेस एंड अगेन ऑफसेट. व्हाट इज दिस? लेट मी नेम इट. व्हाट इज दिस P? दिस P इज पेज नंबर. क्योंकि मैंने बोला ना पेजेस में डिवाइड करते हैं तो पेज नंबर जनरेट होगा, और फ्रेम्स में डिवाइड करेंगे तो क्या जनरेट होगा? Frame number. Frame Frame number. number. न्यूमेरिकल्स करोगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन मत लो बिल्कुल भी. दिस इज ऑफसेट, राइट? दिस इज ऑफसेट. क्लियर है इतना? Yes, ma'am. अब मैं और ज़्यादा ना बर्डन नहीं करूँगी. आई थिंक दिस मच इज इनफ. अब जब न्यूमेरिकल कराऊंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके अब नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डू ना, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ? आई एम टीचिंग दिस सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड मैपिंग ऑफ एड्रेसेस. क्योंकि एक प्रोसेस का एड्रेस अगर सेकेंडरी मेमोरी में कुछ है तो मेन मेमोरी में जब आप उसको लोड करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा. यस, यहाँ पे आप जा रहे हो. इफ यू आर लोडिंग दिस प्रोसेस हियर इन दिस, द एड्रेस विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू दिस लोकेशन. अभी ये यहाँ पे मान लो यहाँ कोई एड्रेस है A1, तो यहाँ पे जब ये चला जाएगा तो ये कोई किसी भी एड्रेस पे जा सकता है, तो दैट विल बी सम एड्रेस A2 इन सेकेंडरी मेमोरी. सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जब ये यहाँ जाएगा तो इसका एड्रेस कैसे चेंज होगा, उसके बिट्स में क्या इफेक्ट आएगा. तो ये एड्रेस मैपिंग जो हम पढ़ेंगे ना, ये आपको समझनी जो बहुत मुश्किल नहीं है.
बट अगर नहीं पढ़ोगे तो आसान भी नहीं है। ठीक है? हाँ जी। Yes, ma'am. ओके